Good morning everyone. Namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas. Okay? So close your eyes and start with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay, so after the slokas we are going for the some little bit exercise. Okay, so there is a eye exercise and hand exercise. So first of all we are going for the eye exercise. Okay, so first of all you have to rub your hands like this. First of all you have to rub your hands fastly. Then after you have to put your fingers on eyes. Okay, again you have to do this 3 times. Okay, so like this. Okay, so you have to do 3 times. Okay, then after you have to do the another exercise like a hand exercise like this, straight hands, and then after you have to rotate your hands. ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर. Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe. So let's start today's lecture. Myself Padresh Khatar and I am your aptitude teacher. So today we are going for the aptitude test number 10. Okay, I hope आप सब ने अभी तक सारे हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो अटेंड किए होंगे और कंप्लीट भी कर लिए होंगे. अगर आपने नहीं किए हैं तो आप सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट कर लो. ओके, so then after we are going for the aptitude test number 10. There is a question number 1. Tick the correct option from 1 to 6. तो हमें यहाँ पे जो 1 to 6 क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और टिक मार्क करना है. So let's start the question number 1. Okay, so first of all there is a pair, hospital and patients. Okay, so what is the meaning of the hospital and patients? Is that there is any connection with this? Yes, हॉस्पिटल एंड पेशेंट. जो हॉस्पिटल्स होती है उसके अंदर पेशेंट्स होते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दूसरी पेर है तो यहाँ पे स्कूल है. तो स्कूल के अंदर क्या होता है? तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं. ओके, तो हमारा जो आंसर है वो स्टूडेंट्स. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी एंड देन आफ्टर ए सी. यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, ए बी सी डी एंड ए सी. तो यहाँ पे क्या किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर को यहाँ पे पिकअप किया गया है. सो यहाँ पे जो दूसरी पेयर है पी क्यू आर एस, तो हमें यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड को पिकअप करना पड़ेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट पी है और थर्ड हमारा आर है. सो देयर इज ऑप्शन नंबर बी, पी एंड आर. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, पी आर. Then after question number 3, A, B and C, A, B and C. So there is a numbers 1, 2, 3. It means A 1 है, B है वो 2 है और C है वो यहाँ पे 3 है. जिस तरह से हमारी सीरीज कंटिन्यू होती है A B C D, ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स है 1, 2, 3, 4. तो हमने A को 1 से कनेक्ट किया है, B को 2 से, 3 को C से. तो सेम यहाँ पर भी होगा डी ई एफ. तो डी जो है वो फोर्थ लेटर है बी सी डी का, जैसे कि ए यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, बी सेकेंड लेटर, सी थर्ड लेटर, डी फोर्थ लेटर, ई फिफ्थ लेटर, एफ सिक्स्थ लेटर. तो यहाँ पर क्या होगा? 7, 8 एंड 9. तो हमें यहाँ पे 7, 8 एंड 9 लेटर्स को फाइंड आउट करना है. तो जी एच एंड आई. तो जी एच आई जो है वो हमारे 7th, 8 एंड 9 लेटर्स है. तो हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट कर दिया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. देयर इज अ फिगर्स, इन एंड आउट फिगर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ rectangle and inside the circle, so there is a opposite first of all circle and inside the rectangle.
आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फिगर के अंदर रेक्टेंगल और उसके अंदर सर्कल है, बट देर इज अ opposite. First of all circle and inside the rectangle, then after there is a triangle and inside the rectangle, but there is a opposite of this figure. There is a inside the triangle and outside the rectangle. Then after next figure is a circle and inside the circle there is a triangle. So we have to do the opposite of this figure. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्राइंगल होगा और इनसाइड द सर्कल. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज ऑफ another options are the difference. Okay, so that is the option number A is the correct answer. Then after question number 5 we have to complete this figure. So यहाँ पे हमारी फिगर है वो किस तरह से है, तो यहाँ पे वन टाइप ऑफ Z यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज देर इज़ अ S. इस तरह से जो हमारा S है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करो कौन सी फिगर यहाँ पे कनेक्ट होगी. तो यहाँ पर ये भी नहीं होगी, देन आफ्टर ये भी हमारी फिगर कनेक्ट नहीं होगी, बट ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड आंसर इज. तो यहाँ पे हमें आंसर में से कौन सा लेटर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस लेटर्स ANSWER आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यूज़ है NEWS. सो देर इज़ अ NEWNS. तो सारे लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. बट लेट्स सी द अनदर ऑप्शंस if there is anyone matches. Okay, READ, REA, but there is a no D. Okay, that's why we cannot use these letters. Then after WASTE, vast, WAS, but there is a no T, that's why we cannot consider this one. Okay, then after WARM, warm, so there is a WAR, but there is a no M, that's why we cannot consider this one. So there is a answer is a news, option number A. Okay, then after question number 7, cross the odd one out. Question number 7 and 8. तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो हमें यहाँ से क्रॉस आउट करना है ओड नंबर्स को. मतलब कि यहाँ पे जो है वो इसके साथ मैचेस नहीं करता है. जो बाकी के हमारे नंबर्स होंगे वो मैच होंगे, बट एक ऐसा होगा जो यहाँ पे मैच नहीं होगा. ओके, सो देर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट ऑफ ऑल AAB. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे so there is a A and B. A is the first letter and B is the second letter, but first letter is a 2 time and second letter is a 1 time. Same here C and D. तो C जो है वो थर्ड लेटर है एंड D हमारा फोर्थ लेटर है, बट थर्ड लेटर इज अ 2 टाइम एंड फोर्थ लेटर इज अ 1 टाइम. देन आफ्टर EEFF, देन आफ्टर FG, बट देर इज़ अ मिस्टेक. यहाँ पर G और H होना चाहिए, बिकॉज ऑफ F के बाद G आता है और G के बाद H आता है. F के बाद G कभी नहीं आता. अगर आप ABCD बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा. ओके, देन आफ्टर I and J इज़ अ करेक्ट, बट देर इज़ अ मिस्टेक. सो हमने यहाँ पे क्रॉस आउट करना है. ओके, तो ये हमारा क्रॉस आउट. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8. तो यहाँ पे फिगर्स है. फर्स्ट फिगर तो उसके अंदर सर्कल है और सर्कल के आउटसाइड 2 लेटर्स है, मतलब सॉरी लेटर्स नहीं है, 2 लाइन्स है. देन आफ्टर अनदर सर्कल एंड देर इज़ अ 2 लाइन्स आउटसाइड द सर्कल. देन आफ्टर थर्ड सर्कल देर इज़ अ आउटसाइड 2 लाइन्स. देन आफ्टर but there is a inside line and one is outside, but there is a mistake. तो यहाँ पर दोनों आउटसाइड होनी चाहिए, बट यहाँ पे वन जो लाइन है वो इनसाइड है, दैट्स वाई इट्स अ रॉन्ग. तो यहाँ पे हमें क्रॉस आउट कर देना है. देन आफ्टर ये जो है वो भी आउटसाइड है. इट मीन्स हमारे यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे रॉन्ग है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9, write the greatest and the smallest 3 digit numbers using 7 and 0. हमें यहाँ पे 7 और 0 का यूज़ करके यहाँ पे 3 डिजिट्स लेटर को लिखना है. ओके ओके, सो देर इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट नंबर. तो देर इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द ग्रेटर नंबर. 7 इज़ अ ग्रेटर नंबर
then after again we get the second greater number 7 and then after we get the 0. हम यहाँ पे 2 लेटर्स में से किसी को भी 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे 770 770 is the greatest number using these 2 digits. Then after smallest number, so first of all we get the smallest number. So there is a 0 is the smallest number, but we cannot use first of all this letter बिकॉज ऑफ अगर हम ज़ीरो को पहले यूज़ करेंगे तो वो हमारा 2 डिजिट बन जाएगा, बट हमें यहाँ पे 3 डिजिट को लेना है. तो इसीलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करेंगे 7 एंड देन आफ्टर 0 एंड 0. ओके, सो देर इज़ अ 700. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 we have to multiply these. Okay, so 8 multiply by 20, 8 multiply by 20. so हमें यहाँ पे 8 and 2 को ही मल्टीप्लाई करना है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 0 साथ में है तो 0 को हम साइड में रख देंगे और जो हमारे 2 डिजिट्स हैं 2 उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 8 2 ज़ा 16 एंड 0 को हम यहाँ पे एज इट इज़ रख देंगे. सो देर इज़ अ 160. देन आफ्टर 11 मल्टीप्लाई बाय 9. सो 11 9 ज़ा 99 एंड 0 हम यहाँ पे एज इट इज़ रख देंगे. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सी 21 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 21 मल्टीप्लाई बाय 1. तो हमें ज़ीरोज़ को एज इट इज़ यहाँ पे रख देना है, बट देर इज़ अ 2 ज़ीरोज़. आपको याद रखना है यहाँ पे 1 एंड 2 ज़ीरोज़ है. इन सभी के अंदर सिंगल ज़ीरोज़ थे, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल ज़ीरो को लास्ट में ऐड किया था, बट देर इज़ अ 2 ज़ीरोज़. सो वी हैव टू इंसर्ट द 2 ज़ीरोज़ एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21. सो इज़ दैट द आंसर. ओके, सो ये था हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 7. ओके, सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं.